Okay, so we had already discussed about this chlorophyll pigment. Now let us discuss about some other pigments as well and थोड़ा सा डिटेल पिगमेंट्स के बारे में. ओके, सो पिगमेंट्स का काम क्या होता है बच्चा? पिगमेंट्स का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना. They are the substances that are going to absorb the light. Okay, now chlorophyll A जो है that is the main pigment. Chlorophyll A is the main pigment. Rest of them, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, E, carotene, xanthophyll, बहुत सारे पिगमेंट, ये सब क्या है? These are accessory pigments. These are accessory pigments. In pigments is chlorophyll A. Rest of them are accessory pigments. Okay. क्यों accessory pigments है? अभी आएंगे उस पॉइंट पे. Let us first discuss जनरल empirical formula. आपसे पूछ सकते हैं about chlorophyll A and chlorophyll B. Both है CHONMG, CHONMG. Okay. मैग्नीशियम सेंटर में प्रेजेंट होता है. अभी हमने देखा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है. Yes, carotene and xanthophyll are not chlorophyll. These are अलग classes. Chromoplast you can say. This provide colors. अभी हम लोग आएंगे उस पॉइंट पे. We will come. Okay. Now chlorophyll A और chlorophyll B में एक difference है. यहाँ पर number of H atoms are 72 और यहाँ पर H कितना है? 70. Like oxygen, यहाँ 5 number of oxygen atoms are present. Here 6 oxygen atoms are present. Okay, so 72 70 इधर 5 इधर 6. The difference is यहाँ पर methyl group present है. Chlorophyll A has methyl group present, but chlorophyll B has aldehyde group present in it. My voice is cracking. से rejoin करती हूँ बच्चा, नेटवर्क इशू है. I will just rejoin. Just wait. Is it clear now? Yeah. So what I was discussing, the chlorophyll A and chlorophyll B में difference है. General empirical formula can be asked. Okay. So chlorophyll A में and chlorophyll B में क्या difference है? यहाँ पर एक तो H and O, number of H atom and O, hydrogen and oxygen के number में difference है. यहाँ 72 है, इधर 70, इधर 5, इधर 6. Okay. The other difference is यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है साइड चेन में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इट इज मिथाइल ग्रुप. क्लोरोफिल बी हैज एल्डिहाइड ग्रुप. ओके, मिथाइल ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप. सो दिस इज बेसिक डिफरेंस. सी और डी का एम्पिरिकल फॉर्मूला कभी नहीं पूछेंगे. कैरोटीन का पूछ सकते हैं. कैरोटीन में इट हैज C40H56, C40 and H56.
while xanthophyll is the oxidized form of carotene. Because देखो दोनों का फॉर्मूला C40H56 है, C40H56, but it has an oxygen molecule. It has an oxygen molecule. So it is the oxidized form of, I can say, carotene. So this is methyl and this is aldehyde. CH is aldehyde. किसी को भी क्लियर वाइज नहीं आ रही है क्या? अच्छा, नेटवर्क इशू है, अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है देन आई विल रीजॉइन, अगर समझ में आ रहा है तो okay, I will try to rejoin. Okay, just wait. Okay. So बच्चा, chlorophyll A and chlorophyll B, one has methyl group in it and the other has aldehyde group in it. Okay. And if I talk about carotene and xanthophyll, carotene has C40H56 and xanthophyll has C40H56 plus an oxygen molecule. I can also say xanthophyll is the oxidized form of carotene. Question can be asked, xanthophyll is oxidized form of which pigment? Your answer will be carotene. Okay, so these are generally empirical formula जो आपसे पूछ सकते हैं. C and D का similar है B and A से, but कभी पूछेंगे नहीं, don't worry. Okay, now chlorophyll, yes, xanthophyll is accessory pigment, हम लोग आएंगे उस पे, we are coming on to that. Chlorophyll A and carotenes, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा होगा, ओके, ऑल दोस ऑर्गेनिज्म विल हैव क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन्स इन देम. These are universal pigments. These are universal pigments. Okay. Chlorophyll A and carotenes are universal pigments. Anthocyanin is also a pigment, बच्चा. Anthocyanin भी pigment ही है. It is also a pigment. अभी बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है अक्षत. वी आर कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट जहां पर समझना स्टार्ट करना होगा. दिस इज ऑल थ्योरी ओनली. क्लोरोफिल ए एंड बी का एम्पिरिकल फॉर्मूला, दोनों में बेसिक डिफरेंस. यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप है. यहाँ पर कैरोटीन का फॉर्मूला एंड xanthophyll का आपको पता होना चाहिए. एंड xanthophyll इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कैरोटीन. Chlorophyll A and carotenes are known as universal pigments because all the photosynthetic organisms that are liberating oxygen will have these pigments in them. ये present ही होगा.
इसके अपार्ट क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी हो सकता है, सी हो सकता है, किसी में डी हो सकता है, किसी में ज़ेंथोफिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन पिगमेंट विल बी प्रेजेंट देयर. ओके, नाउ क्लोरोफिल ए has blue green color. Chlorophyll A has blue green color. Chlorophyll B pigment has yellow green color. Xanthophyll yellowish color impart करते हैं अगर किसी में भी present होंगे तो, and carotenoids yellow to orange color impart करेंगे. Chlorophyll A blue green color, chlorophyll B yellow to green color, Xanthophyll yellow color, and carotenoids yellow to orange color. Okay, so this is the basic thing about the pigment. Now carotenoids. carotenoids को हम लोग necessary pigments भी बोलते हैं. Why? Because of two reasons. Because of two reasons. वो दो reason कौन से हैं? कैरोटोनाइट जो करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को, बट अल्टीमेटली उसे ट्रांसफर कर देते हैं किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास. ओके, सो कैरोटोनाइट्स क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड दे ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल ए. लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं जस्ट लाइक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बट उसको ट्रांसफर कर देते हैं अल्टीमेटली किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास. That is why carotenoids are known as accessory pigments. Second function, देखो अगर बहुत ज्यादा क्लोरोफिल का काम क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना. बट अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होके डिस्ट्रॉय भी हो सकता है. ओके, तो उस चीज को, उस डिस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट. नाउ फोटो की प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस में इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फोटो ऑक्सीडेशन. तो कैरोटेनॉइड्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लेट्स से सेंटर में प्रेजेंट है और आसपास कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट है. अब लाइट जब फॉल हो रही है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, आसपास कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट है, वो भी उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो क्या अगर ज्यादा लाइट होगी तो कैरोटेनॉइड एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे सो दैट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो. दैट इज हाउ carotenoids are providing a shield to this chlorophyll molecule. And that is how they are preventing this photo oxidation. वो लोग जितने भी कैरोटेनॉइड्स हैं, they are doing two things. They are absorbing light energy and ultimately transferring it to chlorophyll molecule. कि आगे जाके फोटोसिंथेसिस का काम वही करेगा. सेकेंड थिंग, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी है तो एक्सेस लाइट को अपने पास रख ले सो दैट फोटो ऑक्सीडेशन ना हो किसका? क्लोरोफिल पिगमेंट का. बच्चा अगर फोटो ऑक्सीडेशन हो गया क्लोरोफिल का तो the molecule get unable to perform photosynthesis further. The structure of the chlorophyll molecule will be destroyed. Okay, that is why carotenoids are known as accessory pigment. They are not the main pigment. Main pigment is chlorophyll A. क्योंकि अल्टीमेटली सब एनर्जी किसके पास आ रही है? क्लोरोफिल ए के पास. Is nobody getting my voice? Voice clear है किसी को या नहीं है?
Are you able to understand or not? Okay, you are able to understand. I am repeating again and again. Please try to understand. Network issue थोड़ा है बच्चा. Just try to understand. Okay. So main pigment is chlorophyll A. Main pigment is chlorophyll A. And carotenoids are accessory pigments. Why? Because they are absorbing light energy, but ultimately they are transferring it to chlorophyll A. So that is why chlorophyll A is the main pigment, but other pigments, the carotenoids and other pigments, these all are accessory pigments. Now these carotenoids are grouped under two categories. They are grouped under two categories. One is carotene, the other is xanthophyll. One is carotene, the other is xanthophyll. Okay. Carotene कौन सा color impart करता है? Orange red. Orange red. Carrots में present होता है. They can be isolated from carrot. They can be extracted out from carrot. Okay. So that is why carrot कैसे color की दिखती है? Orangish reddish color की दिखती है. Because of presence of these pigments, carotenes. And its basic formula is C40H56. Likewise, xanthophylls, these are yellow in color. Yellow in color. These are oxidized form of carotenes. Its general formula is C40H56 and O2. Now, xanthophyll के अंदर ही एक आता है क्लास ल्यूटीन बच्चा, ल्यूटीन. ऑटम के टाइम पे लीव्स फॉल होती हैं तो उस टाइम पे उनका कलर कैसा होता है? येलोइश ऑरेंजिश कलर का होता है ना. That yellow color is due to the presence of lutein. Lutein, xanthophyll, carotene, everything is present in plants. अभी plants की बात हो रही है. We are discussing about carotene. बच्चे carotenoids को दो क्लास में डिवाइड किया है. One is carotene, the other is xanthophyll. Carotenoids और जगह भी प्रेजेंट होता है, बट दीज आर ऑरेंज रेड इन कलर. xanthophyls येलोइश कलर पिगमेंट है, येलोइश कलर. सबसे अच्छा एग्जांपल उसका ल्यूटीन. जो ऑटम में लीव्स फॉल होती हैं उनका कलर येलो कलर का हो जाता है, येलो ऑरेंजिश कलर का. इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ल्यूटीन. कौन से प्लांट में? किसी भी प्लांट में आहार प्रेजेंट हो सकता है जहां लीव्स का कलर येलो हो रहा है. Okay, so that is because of lutein. Fucoxanthin, fucoxanthin diversity chapter जब पढ़ा होगा उसमें classes of algae पढ़ी होंगी. Red algae, brown algae, green algae. Brown algae is brown because of presence of this fucoxanthin pigment, because it imparts brown color. It imparts brown color. Fucoxanthin. Okay. So it is also another important example for xanthophyll that is present in brown algae. Phaeophyceae is the class of brown algae. What is the meaning of isolated from carrot? Isolated मतलब extraction. Carrot में present होता है और carrot से हम लोग निकाल सकते हैं इस pigment को. That extraction process is known as isolation. Isolated from carrot. Isolate करना, okay? Now, lutein, fucoxanthin, these are the type of xanthophylls. Apart from these carotenoids, one more type of pigment is present, that is phycobilin. बच्चा isolate कर सकते हैं to perform various experiment. So this is a way of writing. It can be isolated from carrot, or you can write it. It is present in carrot. Okay. Now phycobilin. Yes, it is consumed. बच्चा carotenoids are consumed. बीटा कैरोटीन का नाम सुना है? विटामिन ए उसी से मिलता है, बीटा कैरोटीन. Then phycobilin.
Phycobilin are the pigments that are mainly found in blue-green algae, cyanobacteria. उसमें phycobilin pigment होता है. That is also known as phycocyanin. Red algae में जो present होता है phycobilin, that is known as phycoerythrin. You cannot create. These are present naturally. Okay. Phycobilin, these pigments are mainly found in blue-green algae. Blue-green algae में कौन सा phycobilin मिलता है? That is phycocyanin, cyanobacteria. Blue-green algae में present होता है. And red algae में phycoerythrin is present. That is a type of phycobilin. Okay. Again फिर से एक बार डिस्कस करते हैं. Just go through it. इन सब का काम बच्चे लाइट एब्जॉर्प्शन ही है. They all are accessory pigment. They are absorbing light, but ultimately ये light किसको देंगे? क्लोरोफिल A को दे देंगे. भाई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर ले. One function is this. The other function is कलर इम्पार्ट करेंगे. पिगमेंट का काम क्या होता है? कलर इम्पार्ट करना. तो फ्यूकोसैंथिन ब्राउन कलर इम्पार्ट कर रहा है ब्राउन एल्गी को. ओके. कैरोटेनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट लाइट अब्सॉर्ब करेंगे, बट किसे दे देंगे? अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को. आल्सो उसको करेंगे फ्रॉम द photo oxidation, right? Then carotenoids can be of two types, keratin and xanthophyll. Keratin carrots में मिलता है. xanthophyll में दो हमने पढ़े, lutein and fucoxanthin. lutein कहाँ मिलेगा? ऑटम फॉलिएज में. जो लीव्स गिर जाती हैं ऑटम के टाइम पे, येलो कलर उनका ल्यूटिन की वजह से होता है. फ्यूकोजैंथिन कहाँ मिलता है? ब्राउन एल्गी में मिलता है, फियोफाइसी. Phycobilin pigments जो होते हैं, these pigments can be found in blue-green algae and red algae. These are various accessory pigments only. The main pigment is chlorophyll A, right? Phycobilin formula is not important, leave it. बहुत बड़ा फॉर्मूला है और कोई पूछेगा भी नहीं. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल. जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको लिख दिए हैं. these are important one. बाकी फ्यूकोजैंथिन, ल्यूटिन, इसका भी फॉर्मूला आपसे अभी कोई नहीं पूछेगा. these are the important one जो आपको याद रखने हैं. that too can be asked in NTSC. NTSC एग्जाम में पूछ सकते हैं. okay. Now that was about pigments. Main pigment chlorophyll A. बाकी जितने भी पिगमेंट हैं वो सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं. एसेसरी पिगमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि हम एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या करना है? एसेसरी पिगमेंट दे आर एब्सॉर्बिंग लाइट एनर्जी बट दे आर ट्रांसफरिंग इट टू क्लोरोफिल ए. तो क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट. बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं these are accessory pigments. फॉर्मूला फॉर क्लोरोफिल C, D, E कोई नहीं पूछेगा. इट इज सिमिलर टू क्लोरोफिल A and B, बट प्लीज जितना लिखा है वही करो. नहीं पूछेगा. जो इंपॉर्टेंट नहीं है लीव इट. अभी कोई नहीं पूछेगा आपसे. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इट इज लीफ. इन द केस ऑफ डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस वगैरह, इसमें ग्रीन स्टेम होता है, तो वहां पर भी स्टेम में भी हो सकता है, बट मेनली इट इज लीफ. लीफ में भी कौन सा पार्ट? मीजोफिल सेल्स वाला पार्ट. मीजोफिल सेल्स वाला पार्ट. तो इन हायर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस particularly in specialized cells called mesophil cells of leaves. Okay. एंड मेसोफिल सेल्स में भी क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है, व्हिच इज द एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. यस अजीत, एपिफिटिक रूट्स में भी होता है. एपिफिटिक रूट्स में भी होता है. दैट इज आल्सो ओके. बट अभी हम लोग मेन उसकी बात कर रहे हैं जो नेचुरली मेनली मेजॉरिटी प्लांट्स में हो रहा है. ओके. सो
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स and within the mesophyll cells chloroplast is present, which is the actual site for photosynthesis. Okay, now let us see this image. एक लीफ लिया. ओके, इस लीफ का एक सेक्शन मैंने कट किया और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा तो इट लुक्स लाइक दिस. अक्षत, प्लीज डोंट राइट इन द लैंग्वेज, जस्ट राइट, नोट इट डाउन क्विकली. ये सब चीजें डायग्राम में मैं अभी बता दूंगी तो क्लियर हो जाएगा. डायग्राम में उसे लेबल कर लोगे तो इट विल बी फाइन. पूरा नोट करने का ये पार्ट जरूरी नहीं है. Okay, so leaf का एक section cut किया and when I cut this section and look through this section with the help of a microscope, this is how it looks. Okay, so every leaf is going to have a upper epidermis and a lower epidermis. जो outermost layer होती है cell की, तो एक upper layer होती है, this is the upper layer, this is the outer layer, the lower layer. This upper layer is known as the upper epidermis and lower one is lower epidermis. As I have told you in previous class that leaf के lower side पे mostly stomata present होते हैं. तो देखो यहाँ पे gap present है and these gaps are for stomata only. So lower epidermis में stomata are present. Okay. And upper epidermis is ऐसे ही है normal. Now upper epidermis के ऊपर and lower epidermis के ऊपर देखो एक और wavy सी line है and that wavy line is cuticle. बच्चा प्रीवियस स्लाइड में जो भी था वो इस डायग्राम में मैं समझा रही हूँ, प्लीज यहाँ पर समझ लो, वो पार्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा. ओके, लीफ हैज अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड दोनों एपिडर्मिस के ऊपर एक एक्सी लेयर प्रेजेंट होती है नोन एज क्यूटिकल. इसका काम क्या होता है? एक्सिस लाइट को रिफ्लेक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन वहां पर बढ़ जाएगा. बहुत ज्यादा वहां पे ट्रांसपिरेशन ना हो तो क्या करना पड़ेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. और लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए वहां पर जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है डेजर्ट प्लांट में, इट इज वेरी थिक, बट नॉर्मल प्लांट में इट इज थिन. इट इज नॉट दैट थिक. ओके, so this is cuticle that is present over this or above this epidermal layer. Okay, now between this upper epidermis and lower epidermis, these mesophyll tissue or the mesophyll cells are present. This all is mesophyll tissue. Okay, and अगर mesophyll टिश्यू यहाँ पर कहीं से कट किया और यहाँ पर क्या है? वीनलेट्स आ रही हैं, ये वीन है एंड दीस वीनलेट्स आर प्रेजेंट. तो इन वेन्स में क्या प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट. तो दिस इज वेस्कुलर बंडल और जाइलम एंड फ्लोएम. तो दिस इज वेस्कुलर बंडल. अपार्ट फ्रॉम दिस वेस्कुलर बंडल जितना भी टिश्यू है दैट इज नोन एज मेसोफिल टिश्यू. मेसोफिल टिश्यू को बच्चा आप देख रहे हो तो देखो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One is this layer, it has compactly arranged cells. कौन से सेल्स हैं ये? compactly एक दूसरे से अरेंज है. देखो बिल्कुल पास पास में है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, साइज और शेप मोर और लेस सेम है. तो दिस लेयर इज नोन एज, यस जयेंद्र आपने सही बोला, इट इज नोन एज पैलिसेड लेयर. ओके, एंड नीचे वाला जो टिश्यू है, नीचे वाला जो एरिया है, इसमें स्पेसेस हैं. That is known as spongy. Yes, very good. Getting the answer. Very good. Okay. So mesophyll cells has two parts. One is compactly arranged layer known as palisade layer, and one
spaces in between them known as spongy cells. So palisade layer and spongy cells दोनों मिला के मेसोफिल सेल हो गए. अब इन मेसोफिल सेल्स में जितने भी सेल्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट है? उनके पास क्या प्रेजेंट है? मेनली क्लोरोप्लास्ट. उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ double membrane bound organelle, and this is the organelle that is responsible for photosynthesis, जो photosynthesis perform करेगा mainly. Okay, so upper epidermis, lower epidermis, बीच में present है mesophyll tissue. mesophyll tissue में present है chloroplast, and chloroplast में क्या है? एक बार इसका structure देखते हैं. chloroplast has two membrane, one is outer, another is inner membrane. Outer membrane and then inner membrane. So outer and inner membrane, दो membrane present है. Then underside पे this disc-like structure. Sorry बच्चे, network problem है आज. I don't know why it is happening again and again. Okay, so we were discussing the structure of the leaf. So chloroplast structure we were discussing, and chloroplast structure में there are two membrane, outer membrane and inner membrane. Okay, outer membrane and inner membrane के बाद अगर अंदर का structure देखेंगे तो there are
thylakoid present. Thylakoid, these are disc-like structures. Disc-like structures, or you can say coin-like structure. देखो एक, दो, तीन. Okay, these are known as thylakoid, and the groups of thylakoid is known as grana. It is known as grana. Okay, so thylakoid present है, and then group of thylakoids is known as grana. So these all are grana. Now the channels that are connecting these two grana are known as stroma lamellae. They are known as stroma lamellae. Okay, and with this region, apart from these all grana and the thylakoid, this all region is known as stroma. So within this membrane, all the region is known as stroma except for this thylakoid that are present. Okay, so कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? Inner outer membrane, inner membrane, then disc of thylakoid is known as grana, and then yes, अगर डाउट्स है तो you can write it down in the chat section. बच्चा FO F1 पार्टिकल दोनों जगह पे होते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे एटीपी का प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है. अभी हम लोग पढ़ेंगे. एंड माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्योंकि वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, बट दोनों जगह मोर और लेस यहाँ प्रेजेंट होता है. वी विल सी कहाँ पर कैसे होता है. मैट्रिक्स नहीं बोलते, मैट्रिक्स तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं. यहाँ पर जो अंदर वाला रीजन है ना, ये पूरा रीजन इज स्ट्रोमा, सिर्फ जहाँ पर थाइलाकॉइड और ग्रेना प्रेजेंट है. वो तो थाइलाकॉइड हो गया, उस पूरे को ग्रेना बोल दिया. बाकी जितना भी रीजन प्रेजेंट है दैट इज स्ट्रोमा. क्या फंक्शन है स्ट्रोमा लैमेला का, वी विल डिस्कस. फोटोसिंथेसिस जब डिटेल में अभी पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे. ओके, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन फिर से रिपीट करूं बच्चा. लीफ को हमने कट किया, लीफ को कट किया तो वी हैव अपर एपिडर्मिस एंड आउटर लोअर एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर है लीफ की. ओके, इन दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट है मीजोफिल सेल. इनके बीच में प्रेजेंट है मीजोफिल सेल, जहां पर मेनली फोटोसिंथेसिस होगा. मीजोफिल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर. ये कम्प्लीटली अरेंज सेल्स जो ऊपर लेयर दिख रही है दैट इज पैलिसेड लेयर, और जहां पर स्पेस है बीच बीच में दैट इज स्पंजी. So that is palisade and that is spongy. Now cells के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, which is the actual site for photosynthesis. Now क्लोरोप्लास्ट अगर हम लोग स्ट्रक्चर तो it is all part inside this chloroplast in stroma. There are some disc-like structures present known as thylakoid. Single disc-like structure is thylakoid, and groups of thylakoid is known as grana. थाइलाकॉइड के अंदर एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है. सो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है? दे आर पिगमेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस थाइलाकॉइड. Chlorophyll pigment are present on the membrane of this thylakoid. Substomatal cavity and spongy are different, but substomatal नाम से समझ में आ रहा है. This is stomata, यहाँ stomata present होगा. Stomata के नीचे जो cavity है, जो space है, उसको substomatal cavity बोल दिया. Okay. Now, I hope this part is clear. अजीत, बंडल शीट सेल का मैंने अभी नाम लिया क्या? उस पार्ट पे मुझे आने तो दो बेटा. कहाँ आगे से क्वेश्चंस पूछोगे तो जो बेसिक है वो कैसे क्लियर होगा? लेट मी कम टू दैट पॉइंट. बंडल शीट का भी काम ही नहीं है. दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द C4 साइकिल. वहां पर आने तो दो. जब वहां पर आऊंगी तो वी विल डिस्कस अबाउट बंडल शीट सेल. पहले बेसिक क्लियर करो जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ.
अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल टिश्यू इज प्रेजेंट एंड मेसोफिल टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. इट हैज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नोन एज thylakoid. thylakoid का ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर इज ग्रैना. दोनों ग्रैना जो करता है स्ट्रोमल लैमेले. जितना भी अंदर इनर पार्ट है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. नाउ क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. डू रिमेम्बर दिस. थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, देखो ये डिस्क की स्ट्रक्चर और इस अपनी भी तो मेम्ब्रेन है. इन मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, now phases of photosynthesis. Phases of photosynthesis, we have seen site for photosynthesis, it is chloroplast. कहाँ प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल टिश्यू में. मेसोफिल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में. ओके, तो अल्टीमेटली कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल के अंदर हो रहा है. ओके, नाउ फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, लेट अस डिवाइड द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू टू पार्ट्स, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन. as the name suggesting लाइट रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, बट डार्क रिएक्शन में लाइट से कोई लेना देना नहीं है, लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. बच्चा थाइलाकोइड इज डबल मेम्ब्रेन. अभी तो हम लोगों ने देखा एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन हो गई ना. थाइलाकोइड इज double membrane, one outer membrane and inner membrane. Okay, now whole process of photosynthesis is divided among two phases, light phase and dark phase. Light phase is also known as light dependent phase or light dependent reaction, and dark phase is known as light independent reaction. Okay, light phase is also known as photochemical phase or the photochemical reaction phase. Why? Because photo and for light is chemical reactions होती हैं, so that is why photochemical phase. Okay, and it was given by Hill scientists, that is why Hill reaction भी बोलते हैं उसे. उसमें एक बहुत important reaction है जो हिल ने दिया था, that is why Hill reactions भी बोलते हैं. Okay, dark phase is known as light independent phase. Now basic difference क्या है बच्चा light phase और dark phase में? light phase में क्या हो रहा है, light का absorption हो रहा है, but dark phase में light का absorption नहीं हो रहा. doesn't mean कि dark phase सिर्फ dark में ही होगा, dark phase सिर्फ रात में ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. फिर से सुनो, light phase तो लाइट में होना ही है, डे टाइम में होना है, क्योंकि उससे तो लाइट चाहिए, तो लाइट फेस लाइट में हो गई. बट डार्क फेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, व्हिच डजंट मीन कि वो डार्क में ही होगा, वो दिन में भी हो सकता है. डार्क फेस बस डिपेंडेंट नहीं है लाइट पे, वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा. डार्क फेस में कहीं पे भी ऐसा नहीं आएगा कि लाइट एब्जॉर्ब हो रहा हो. सो दैट इज व्हाई डार्क फेस इज नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट फेज. बट इट डजंट मीन कि वो सिर्फ रात में ही होगा, वो सिर्फ डार्क में ही होगा, दिन में भी वो हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में भी वो हो सकता है. अब देखो, पहले लाइट फेज होगा, देन इट इज फॉलोड बाय डार्क फेज. तो लाइट फेज में जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच. ये फेज, ये प्रोडक्ट्स हैं किसके, लाइट फेज के, लाइट के थ्रू बन रहे हैं. लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ एंड एटीपी एंड एनएडीपीएच आर फॉर्मिंग. इन प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन होगा डार्क फेज में, एंड देन ग्लूकोज इज फॉर्म्ड और कार्बोहाइड्रेट्स विल बी फॉर्म्ड. एबल टू अंडरस्टैंड नाउ? लाइट फेज लाइट की प्रेजेंस में होगा, बट डार्क फेज जरूरी नहीं है,
कि लाइट की प्रेजेंस में ही हो। ओके, पहले इतना जो बता रही हूँ वो समझो। लाइट फेस लाइट में होगा, डार्क फेस जरूरी नहीं है लाइट में ही हो या डार्क में ही हो, कभी भी हो सकता है। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेस। ओके, लाइट फेज में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। इन दोनों प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है डार्क फेज में, दैट इज इसके लिए ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए। ओके, व्हाट आर एटीपी एंड एनएडीपीएच? एटीपी तो पता ही है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Yes, very good. And what is the full form for NADPH? It is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Yes, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and ATP is adenosine triphosphate. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? NADPH जो होता है ना, एक वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH is equal to 3 molecule of ATP. I can say NADPH is a high energy molecule. This is a high energy molecule. Yes, Daksha, very good. One NADPH is equal to 3 ATP molecule. I can say NADPH is high energy molecule, and these are also known as assimilatory powers. Assimilatory powers. ये सब कहाँ बन रहा है? ATP, NADPH ये कहाँ बन रहा है? लाइट फेज में. These all are forming one NADPH is equal to 3 ATP. 3 ATP. जयेंद्र, मैं GA3P पे अभी आई क्या? नहीं आई ना. लेट मी कम टू दैट पॉइंट, वो भी डिस्कस करूंगी मैं. आगे से आगे अगर पढ़ के बोलोगे, वहां पर दिमाग लगाओगे और जो मैं बता रही हूँ वो नहीं सुनोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज. यस, लाइट फेज में क्या हो रहा है? लाइट फेज में लाइट का यूज हो रहा है, एटीपी एंड एनएडीपी फॉर्म में, और इन मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है डार्क फेज में एंड ग्लूकोज विल बी फॉर्मिंग. होल प्रोसेस को हमने किस में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स में, डार्क फेज एंड लाइट फेज. पहले लाइट फेज होगा देन डार्क फेज होगा. तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं है, इट इज स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसको करेक्ट कर लेना, स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, so it is divided into two stages: light reaction and dark reaction. Light reaction is light dependent reaction and dark reaction is light independent reaction. Okay, यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है एटीपी और एनएडीपीएच का, यहाँ सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज का. तो लाइट रिएक्शन में व्हाट इज हैपनिंग? लाइट का हम लोग यूज कर रहे हैं प्लस वाटर का यूज कर रहे हैं. हम लोगों ने रिक्वायरमेंट पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का. We had studied कि light is a requirement, water is a requirement, carbon dioxide is a requirement. तो वही सब requirement को हम लोग यूज कर रहे हैं. यहाँ पर लाइट रिएक्शन में लाइट और वाटर का यूज होता है. NADPH are forming. Plus oxygen is also liberating. Plus oxygen is also liberating. ये वही ऑक्सीजन है जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में पढ़ा था. डू यू रिमेम्बर? ये देखो, ये वाला ऑक्सीजन दैट वाज लिबरेटिंग. कहां से आ रहा था? ये वाटर से आ रहा था ना. वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा था एंड ऑक्सीजन वाज लिबरेटिंग. रिमेम्बर दैट? मैंने बोला भी था इफ देयर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ
photosynthesis. So water molecule break हुआ and water molecule break होके the oxygen molecule is liberating. ये oxygen molecule ही यही वाला oxygen है. This one. ये water molecule split होता है and oxygen liberate होता है. Okay. तो यहाँ light और water molecule का utilize हो रहा है and ATP, NADPH are forming plus oxygen is also liberating as a byproduct of photosynthesis. Now dark reaction में क्या हो रहा है? इस ATP और NADPH जो light reaction के products हैं उनका utilization हो रहा है plus carbon dioxide का utilization हो रहा है and ultimately glucose will be formed. Clear है अभी? A brief picture of stages of photosynthesis: light reaction, dark reaction. Light is light dependent reaction, dark reaction is light independent reaction. Synthesis of ATP and NADPH is happening here. Here ATP and NADPH which were formed in the light reaction are getting utilized, plus carbon dioxide is also getting utilized and glucose molecule will be formed. इतना क्लियर है बच्चा सबको? ओके राइट. अब देखो इस वाला डायग्राम फिर से देखो. दिस इज द इमेज फॉर क्लोरोप्लास्ट. yes, carbon dioxide in the dark reaction comes from air only. स्टोमाटा के थ्रू एंटर करेगा लीफ के अंदर. ओके देखो दिस इज chloroplast, outer membrane, inner membrane. Now light reaction टाइम पे क्या होगा भाई? लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे. और पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है? जितने भी पिगमेंट है, वेदर इट इज क्लोरोफिल, वेदर इट इज ज़ेंथोफिल, वेदर इट इज कैरोटीन, कोई भी पिगमेंट है, सब पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे. दिस इज थाइलाकोइड. डिस्क का स्ट्रक्चर क्या है? थाइलाकोइड है. मेम्ब्रेन पे ही पिगमेंट प्रेजेंट है. तो उन्होंने क्या किया? इस लाइट को एब्जॉर्ब किया. लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या प्रोड्यूस किया? एटीपी और एनएडीपीएच. क्या प्रोड्यूस किया? एटीपी और एनएडीपीएच. बच्चा एनएडीपीएच की एनर्जी बराबर है 3 एटीपी के, बट इट डजंट मीन कि एनएडीपीएच एटीपी मॉलिक्यूल है. It is a different molecule. ADP is NADPH is not ATP. उसका एनर्जी उतना है कि वो 3 ATP के बराबर है. We can say it is a high energy molecule, but both are different and both are forming in the photosynthesis. You cannot say कि 3 ATP is forming plus 1 ATP is forming, because that doesn't going to happen. ATP अलग बनता है and NADPH अलग बनता है. We have just compared their energy levels. ओके दक्षा, केल्विन साइकिल अभी मत पढ़ो. केल्विन साइकिल पे हम आएंगे. केल्विन साइकिल के अंदर जस्ट इमेजिन यहाँ पर डार्क रिएक्शन लिखा है. जस्ट इमेजिन डार्क रिएक्शन. दिस इज लाइट रिएक्शन, दिस इज डार्क रिएक्शन. ओके नाउ लाइट रिएक्शन में व्हाट इज हैपनिंग? क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एंड दे आर एब्सॉर्बिंग द लाइट एंड फॉर्मिंग ATP and NADPH. Plus oxygen is also liberating. ये वाला पार्ट हमने जो पढ़ा था वो क्लियर हो गया. लाइट और वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है एंड एटीपी और एनएडीपी बन रहा है एंड ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द लाइट रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में क्या होगा? इस एटीपी एंड एनएडीपीएच का यूटिलाइजेशन होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होगा एंड ग्लूकोज बनेगा. ये GA3P को अभी ग्लूकोज मान के चलो. GA3P क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे when we will be discussing this Calvin cycle very soon. Okay, right now just यहाँ पर ग्लूकोज
आप लोग लिख लो. If you are noting it down, just write glucose here. ATP, NADPH और CO2 का हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एंड ग्लूकोज इज फॉर्मिंग. प्लस ये वाला रीजन जो हो रहा है डार्क रिएक्शन, ये कहाँ पर होगा बच्चा? स्ट्रोमा रीजन में होगा. नोट इट डाउन. अभी जो मैं 2 पॉइंट बोलूंगी प्लीज नोट इट डाउन. लाइट रिएक्शन का साइट है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. लाइट रिएक्शन अगर विद इन दी थाइलाकॉइड, क्योंकि थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. बट डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा रीजन में होती है. डार्क रिएक्शन, साइट फॉर डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा, क्योंकि ग्लूकोज का सिंथेसिस के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होंगे एंड ऑल दोज एंजाइम्स आर गोइंग टू प्रेजेंट इन दिस स्ट्रोमा रीजन ओनली. स्ट्रोमा में होंगे. तो दैट इज व्हाई डार्क रिएक्शन का साइट क्या है? स्ट्रोमा. लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होगा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा. साइट फॉर लाइट रिएक्शन इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, या यू कैन से विद इन द थाइलाकॉइड. डार्क रिएक्शन का साइट स्ट्रोमा. क्लियर है इतना? Dark reaction is also known as biosynthetic phase because biomolecule, that is glucose, is getting synthesized in this dark phase. That is why biosynthetic phase. कोई डाउट है स्लाइड में? एवरीवन, सब कुछ क्लियर है अभी तक जो भी पढ़ाया? इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? नहीं अनवी, ग्लूकोज इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनता है बच्चा. लाइट रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? एटीपी एंड एनएडीपीएच. एटीपी एंड एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में बन रहा है. ओके, एंड इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है डार्क रिएक्शन में टू फॉर्म ग्लूकोज. बच्चा प्रोडक्ट जो थाइलाकॉइड में बने वो कैसे स्ट्रोमा में जाते हैं, वी विल डिस्कस. हम लोग अभी पूरा ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा फिनोमिना डिटेल में पढ़ेंगे. वी विल गेट टू नो सून करण. ओके, लेट अस प्रोसीड. लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में जो मेन थिंग्स दैट विल बी हैपनिंग, लेट अस डिस्कस दैट. वो क्या क्या होती हैं अभी ब्रीफ में, डिटेल में बाद में. सबसे पहले लाइट रिएक्शन में एक्साइटेशन होगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का. एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मतलब जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट दैट आर प्रेजेंट ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वो जैसे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, दे विल गेट एक्साइटेड. हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी ज्यादा आ जाती है तो हम लोग भी उछलते कूदते हैं, सब काम करते हैं, बट एनर्जी लो होती है तो बैठ जाते हैं. ऐसे ही हो रहा है क्लोरोफिल के साथ भी. जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल हुई, लाइट को एब्जॉर्ब किया उन्होंने एंड दे गेट एक्साइटेड. एंड जैसे ही वो एक्साइट हुए, उन्होंने क्या किया? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किया. इलेक्ट्रॉन. तो एक्साइटेशन ऑफ excitation of chlorophyll will be taking place, and because of excitation of chlorophyll, an electron will get ejected out from this chlorophyll molecule. This is what is happening. First thing. Second, photolysis of water molecule will occur. Photolysis मतलब
फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक करना, लाइस मतलब ब्रेक करना। तो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, दैट इज बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आल्सो नोन एज splitting of water. Yes, Daksha, H2O will break into protons and electron and oxygen. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन निकलेगा जब फोटोलाइसिस होगा वाटर का. ओके, द थर्ड थिंग दैट विल हैपन इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन इन सिंपल टर्म इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है एटीपी का फॉर्मेशन, दैट इज बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो एडीपी ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. एडीपी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. It combines with inorganic phosphate. It forms ATP. तो देखो दो फॉस्फेट थे यहाँ पे एडीपी में, डाइफॉस्फेट है इट इज. तो दो फॉस्फेट थे, प्लस एक कंबाइन करेंगे एक और फॉस्फेट के साथ, पीआई दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड एन एटीपी मॉलिक्यूल विल फॉर्म. दिस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. ADP plus PI, ADP plus PI is equal to ATP, that is known as phosphorylation, and because it is happening in the presence of light, that is why it is known as photophosphorylation. Is it clear till now? All these three steps. Now production of NADPH is also going to happen in light reaction. That is production of assimilatory part. Okay, so NADPH will also get formed. So these four things are happening, or it will happen in the light reaction. Light fall होगी, chlorophyll molecule excite होगा and it will eject an electron. Photolysis of water molecule होगा, that is also known as splitting of water, जिसकी वजह से oxygen liberate होगा. Photophosphorylation, that is formation of ATP, and also formation of NADPH will take place. So this is what will happen in light reaction. Okay, let us proceed. आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और टर्म्स को क्लियर करते हैं. So फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम बच्चा क्या होता है? फोटो सिस्टम में जितने भी पिगमेंट्स हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वो भी आ जाएंगे, प्लस कुछ प्रोटीन्स आएंगे. तो पूरी यूनिट जो लाइट रिएक्शन करवा रही है, दैट विल बी नोन एज अ फोटो सिस्टम. ओके, नाउ फोटो सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, PS1 and PS2. Okay, what is the difference between PS1 and PS2? PS1 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, PS1 that can absorb maximum at 700 nanometer wavelength. PS1 मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक कहाँ आएगा? 700 नैनोमीटर पे. But PS2 can maximally absorb at 680 nanometer. Beyond that, it is not possible for it. Okay, so less wavelength जितनी भी होंगी वो तो दोनों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, but 680
के बियॉन्ड PS2 नहीं कर पाएगा एंड PS1 के बियॉन्ड सॉरी 700 के बियॉन्ड PS1 नहीं कर पाएगा। फोटो सिस्टम क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज रिटन है। The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes within photosystem 1 and photosystem 2. फोटोसिस्टम एक्चुअली क्या होता है बच्चा, फोटोसिस्टम में ये सारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, जितने भी हमने पिगमेंट पढ़े थे, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये सब कुछ प्रेजेंट होगा किसमें, फोटोसिस्टम में। प्लस कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन्स क्या होते हैं हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये सब मिलकर लाइट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं। दैट सिस्टम इज नोन एज फोटोसिस्टम। नाउ जिस फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को, दैट इज नोन एज PS1। और जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर तक होगा, दैट इज नोन एज PS2। एंड बिकॉज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज 700, दैट इज व्हाई PS1 इज आल्सो नोन एज P700। And PS2 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्योंकि 680 नैनोमीटर है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज P680। गॉट इट? फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम में बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं प्लस कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सब मिलकर क्या करवा रहे हैं, लाइट रिएक्शन करवा रहे हैं। नाउ फोटो सिस्टम दो तरह का होगा, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर पे है और फोटो सिस्टम 2 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर पे है। दैट इज व्हाई फोटो सिस्टम 1 इज नोन एज 700, फोटो सिस्टम 2 इज आल्सो नोन एज P680। अभी तक बेसिक ये बताया मैंने, इसमें इस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम? फोटो सिस्टम बच्चा किस क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स और ये सारे पिगमेंट प्रेजेंट है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होगा। अभी हमने पढ़ा ना लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड में हो रहा है, तो फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, थाइलाकॉइड में। बट PS1 और PS2 अलग अलग जगह पे अवेलेबल होते हैं, कहाँ अलग अलग जगह वो मैं बताऊंगी, वी विल डिस्कस दैट। नाउ एक और टर्म पढ़ना है, एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। देखो फोटो सिस्टम में मैंने अभी बताया दो पार्ट्स का बना है फोटो सिस्टम, पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अभी भूल जाओ कौन से प्रोटीन्स होते हैं, वी विल डिस्कस लेटर। पहले उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पहले उसमें क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स, राइट। तो पिगमेंट्स की बात कर लें। अब फोटो सिस्टम में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब को मिला के ग्रुप ऑफ पिगमेंट इज नोन एज एंटीना कॉम्प्लेक्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फोटो सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है? इजी वे में अगर मैं लिखूं तो पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन। प्रोटीन्स अभी भूल जाओ कौन से प्रोटीन्स होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट्स ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। पिगमेंट का जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं उसे, देखो पिगमेंट का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना और एंटीना का काम क्या होता है, सिग्नल को एब्जॉर्ब करना। तो जैसे एंटीना काम करता है वैसे ही पिगमेंट्स काम कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मींस लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ग्रुप ऑफ पिगमेंट दैट आर प्रेजेंट इज आल्सो नोन एज एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, now this antenna complex or light harvesting complex is made up of two things. One is reaction center, the other is accessory pigment. अब accessory pigment तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। accessory pigments, accessory pigments वो pigments से other than chlorophyll A जो क्या कर रहे थे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जो क्या करेंगे,
लाइट को स्टॉप करेंगे, अल्टीमेटली किसे दे देंगे, क्लोरोफिल एक देंगे। एसेसरी पिगमेंट ये सब हो गए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, कैरोटीनॉइड, xanthophyll जो भी है, ये सब लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, बट अल्टीमेटली किसे दे देंगे भाई, क्लोरोफिल ए, तू रख ले, यू कैन टेक इट, आगे का काम तुम ही करो। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, ठीक है, सबसे डिटेल्स ले ली और किसको हैंड ओवर कर दी, मॉनिटर को हैंड ओवर कर दी कि आगे का काम क्लास टीचर के साथ मिलके तुम करवाओगे। तो यहाँ पे मॉनिटर कौन हो गया, क्लोरोफिल ए, व्हिच इज द मेन पिगमेंट दैट फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर, दैट फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, क्लोरोफिल ए। बस आसपास जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट थे बाकी क्लास के, उनको क्या बोल दिया हमने, एसेसरी पिगमेंट, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो इधर से जितना भी काम कर रहे हैं वो किसे दे रहे हैं, अल्टीमेटली मॉनिटर को, दैट इज क्लोरोफिल ए, दैट इज रिएक्शन सेंटर। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मिला के क्या बोला हमने, एंटीना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स किस में काम कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब करने में। So that is known as light harvesting complex. So this is the first part of our photosystem. Everyone cleared? इतना क्लियर है? गुड। वी आर डिस्कसिंग लाइट रिएक्शन राइट नाउ। लाइट रिएक्शन में हम लोग फोटो सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। फोटो सिस्टम दो चीज का बना होता है, पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन। प्रोटीन की बात हम बाद में करेंगे। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट का ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस ग्रुप को हम लोग एक क्लास के साथ कंपेयर कर लेंगे। ओके, क्लास में जैसे एक मॉनिटर होता है, बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे यहाँ का मॉनिटर कौन है, क्लोरोफिल ए, जिसे हमने बोल दिया रिएक्शन सेंटर। बाकी आसपास जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उसे हमने बोल दिया एसेसरी पिगमेंट। बाकी सभी स्टूडेंट और या फिर एसेसरी पिगमेंट क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो मॉनिटर को दे रहे हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए, दैट इज द रिएक्शन सेंटर। सो इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमारा पिगमेंट वाला पार्ट हो गया। नाउ फोटो सिस्टम जो पूरा होता है वो दो तरह का हो सकता है, PS1 एंड PS2। PS1 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर वेवलेंथ तक होता है, इसीलिए उसे हमने P700 बोल दिया। बच्चा, PS is not same as antenna complex. Antenna complex is a part of photosystem. See, pigment है ना, pigment प्रोटीन, तो प्रोटीन तो अभी यहाँ पर आए नहीं है ना, तो ये पिगमेंट वाला पार्ट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स, दिस पिगमेंट वाला पार्ट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स, पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम। ये कुछ और प्रोटीन के साथ मिलकर बहुत सारे बना के क्या बनाएंगे, पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो क्या करेगा, लाइट को, सॉरी, लाइट एनर्जी, पूरा लाइट रिएक्शन करवाएगा। ओके, नाउ तो ये PS1 हो गया और PS2 हो गया। PS1 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर पे है, PS2 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर पे है। इतना क्लियर है सबको? प्लीज नेक्स्ट डिटेल हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आपका कल नहीं है, नेक्स्ट वीकेंड होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट वीकेंड में जब नेक्स्ट क्लास के लिए आओगे आप, प्लीज 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 इतना रिवाइज करके आना, अदरवाइज नेक्स्ट जो मैं समझाऊंगी वो समझ में नहीं आएगा। तो एक बार बस नोटबुक ओपन करके या रिकॉर्डिंग ओपन करके एक बार देख लेना कि क्या क्या बोला था, देन नेक्स्ट क्लास में आना। अदरवाइज 1 वीक का गैप रखोगे और रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे और आगे का फिर समझने में प्रॉब्लम होगा। तो नेक्स्ट टाइम आने से पहले जस्ट रिवाइज इट वंस। अभी जिनके डाउट्स हैं प्लीज आस्क अभी तक के पार्ट में, जिनके डाउट्स नहीं है दे आर फ्री टू लीव। Yes, bye Arpita. Miss, in PS is protein in majority or pigment? पिगमेंट्स मेन है, फोटोसिस्टम का काम ही मेन पिगमेंट के थ्रू है।
बट आगे जाके एनर्जी ट्रांसफर के लिए थोड़ा बहुत एटीपी वगैरह फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं, बट दैट इज डिफरेंट पार्ट, वी विल डिस्कस. बट मेनली पिगमेंट, फोटो सिस्टम का काम मेनली पिगमेंट. ओके. फोटोलाइसिस एंटीना कॉम्प्लेक्स PS2. तो बच्चा, फोटोलाइसिस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, H2O ब्रेक होता है. लेट्स से आई कैन राइट इट डाउन. 2H2O ब्रेक करवाती हूँ मैं. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ब्रेक होंगे अगर, तो क्या मिलेगा? टू प्रोटॉन्स विल रिलीज, टू प्रोटॉन्स विल रिलीज, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स विल रिलीज, and one molecule of oxygen will release. This is what is photolysis. Water molecule का split कर दिया. Lysis is break. Water molecule को break कर दिया. दो प्रोटॉन निकले. अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक होंगे तो दो प्रोटॉन निकलेंगे. देखो H2O है ना, H2O. ओके, सॉरी, 4 प्रोटॉन निकलेंगे यहाँ. 4, 2H2O. तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेंगे तो 4 प्रोटॉन लिबरेट होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, प्लस वो कितना है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट हियर, सो दैट मेक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना इज lysis of water, and it is happening in light reaction. That is why it is known as photophosphorylation. Yes, protons and electrons will be released according to H2O. जितना H2O present होगा उतना proton and electron will be released, depending कितना H2O वहाँ पे split हो रहा है. Okay, this was about photolysis of water. Now antenna complex. देखो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एंटीना भाई टीवी के लिए लगा होता है. एंटीना क्या करता है? ब्रॉडबैंड में एंटीना लगा होता है, क्या करता है? सिग्नल को कैच करता है, सिग्नल एब्जॉर्ब करता है. वैसे यहाँ पर जितने भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं? वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो इस ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? एंटीना कॉम्प्लेक्स बोल दिया. एंड बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग लाइट, हमने से बोल दिया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. इसलिए इसका नाम एंटीना कॉम्प्लेक्स रखा है, because just like antenna it is absorbing light. Okay, now it has two parts. One is reaction center, the other is accessory pigment. पूरे क्लास का एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर को हमने क्या बोल दिया? रिएक्शन सेंटर. दैट इज क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही लाइट को सब जगह से एक्सेप्ट कर रहा है. बाकी सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उसको किस दे रहे हैं? क्लोरोफिल ए को. So chlorophyll A is forming reaction center and accessory pigments बाकी सब pigments मिलकर बना रहे हैं. This is known as antenna complex. Photosystem antenna complex. Anything else?
बच्चा एसिमिलेटरी पावर NADPH और ATP दोनों को ही बोलते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? दे आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग CO2। आगे जाके वो क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे और ग्लूकोज फॉर्म करेंगे। सो NADPH और ATP दोनों को ही हम लोग एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, क्योंकि दोनों दे आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग CO2। तो समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ दिस absorbing or reducing, that is known as assimilatory power. What is the full form of NADPH? तन्मय मैंने बताया था NADPH का full form. Why didn't you write it down? It is nicotinamide dinucleotide phosphate. Nicotinamide dinucleotide phosphate. H stand for हाइड्रोजन बच्चा। जब NADP होगा ना, NADP sorry, NADP is nicotinamide dinucleotide phosphate। जब वो NADPH बन जाता है, मतलब it is getting reduced. It is the reduced form of NADPH is the reduced form of NADP. So हाइड्रोजन ऐड हो गया एक। So H stand for hydrogen. NADP is nicotinamide diphosphate. जब ये reduce हो जाता है तो it become NADPH, that is nicotinamide dinucleotide phosphate hydrogen. एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, reduced form of NADP. One and same thing it is. NADPH is just the reduced form of NADP. Okay, Tanmay? Anything else, bacha? Anyone? निशान, GA3P ना एक्चुअली हम केल्विन साइकिल डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस GA3P इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल, और यू कैन से G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इस G3P से ही एक्चुअली ग्लूकोज बनता है। तो जस्ट राइट, अगर ये वाला डायग्राम नोट कर रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज लिख लो। अभी डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनेगा। ये 3P का हम लोग जब केल्विन साइकिल पढ़ेंगे वी विल डिस्कस इन डिटेल, तो वहां से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये G3P है क्या। ओके ओके, देन नेक्स्ट क्लास में ये सब रिवाइज करके आना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।